हेलो एवरीवन, आज मैं आपको 10वीं क्लास की लिटरेचर बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की चैप्टर नंबर फर्स्ट अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी की डिटेल समरी बताने वाली हूँ। पहले इंग्लिश में फिर हिंदी में। पहले इंग्लिश में समझते हैं। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी whose name is James Harriet, and this story is about a small dog Tricky who became very fat because of his mistress, whose name is Mrs. Pumphrey. And this story started when Tricky was going on a walk with his mistress, Mrs. Pumphrey, and the author of this story was passing through the road, and when he saw Tricky, that he was very shocked that Tricky became very fat like bloated sausage. And then he decided to go to the Mrs. Pumphrey, and he went to Mrs. Pumphrey and he asked that why Tricky is so fat. Then she told that she gives him so much amount of food and levers for his health, and he never denies to eat. He can eat any hour whenever he is offered food. Then James Harriet asked her that do you bring him on walk? Then she told yes. Now you can see that he is on walk with me, on a walk with me. Then James Harriet suggested Mrs. Pumphrey that you have to make a strict diet, otherwise he won't be able to survive in future. Then James Harriet went from there. After two days, Tricky's health started going down, and he started vomiting, and he left eating, and he was just laying on carpet. Then Mrs. Pumphrey decided to take a suggestion from James Harriet, and she called James Harriet, and James Harriet had already planned in advance, and he told Mrs. Pumphrey that Tricky has to be hospitalized, otherwise it would be so difficult to save him. Then James Harriet went to Mrs. Pumphrey's house, and all servants were in fear, and they were busy giving him all stuffs, his cushion, bowls, lunch bowl, and etc. thing. And when James Harriet took him in his hand, wrapped in a towel, and he went from there. And the starting days in the hospital, Tricky didn't eat anything, and James Harriet just gave him water for drink. Then after some days, he started showing some interest in things. He started eating with other dogs, and he started playing with other dogs, because James Harriet made a strict diet for Tricky. But Mrs. Pumphrey was so worried, and she sent dozens of eggs and wine and brandy for him, because she was thinking a surgery is being done with Tricky, so it will help him to improve fast. But all the things got from Mrs. Pumphrey, James Harriet and his friends consumed them, and because all the things were not necessary for Tricky. Then after some days, Tricky became so slim, and he was very active, and he has interest in things, and now he became slim. So James Harriet decided to call Mrs. Pumphrey to take him from the hospital. Then he called, and
After next day, Mrs. Pumphrey came. When she came, Tricky saw him and jumped from James Harriet's hand and jumped to the Mrs. Pumphrey and licked her. And when saw Tricky, she was very happy because she was worried that Tricky can't survive. But now he has become very slim and active. And then she thanked James Harriet and told it was a ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये कहानी एक छोटे से डॉग की है जिसका नाम ट्रिकी है, जिसको उसकी मालकिन बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और उसको बहुत खिलाती पिलाती थी, जिसके कारण ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था। तो एक दिन ट्रिकी अपनी मालकिन के साथ वॉक जा रहा था। तो इस कहानी के राइटर, जो कि एक वेट सर्जन है, वो भी रोड से ही जा रहे थे। तो उन्होंने ट्रिकी को देखा। उन्होंने ट्रिकी को जब देखा, वो बहुत हैरान हुए कि ट्रिकी बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है और इसके लिए ये बहुत खतरनाक हो सकता है, वो इससे सर्वाइव ना कर पाए। और उसके बाद वह मिसेस पम्फ्री के पास गया और उन्होंने पूछा कि आप इसको क्या क्या खिलाते हो। तो मिसेस पम्फ्री ने बताया कि वो उनको बहुत सारी चीज़ें खाने को देती है, एवं वाइन, ब्रांडी और लीवर्स, जो इसके लिए इसको ब्राइन ब्रांडी देते ताकि वो अच्छे से सो पाए, लीवर दे ताकि ये न्यूट्रिशियस से भरे खाना भी दे ताकि वो स्वस्थ रहे। और उसके बाद जेम्स हैरियट ने पूछा कि क्या आप इसको वॉक पे लेके जाते हो। कहते हाँ, लेके जाती हूँ, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हो अभी ये मेरे साथ वॉक पे गया हुआ और ये कभी कभी मेरे गार्डनर के साथ भी वॉक पे आता है। तो फिर जेम्स हैरियट ने कहा कि आप इसके लिए एक स्ट्रिक्ट डाइट बनाएं, अदरवाइज ये भविष्य में बहुत बीमार हो सकता है। उसके बाद जेम्स हैरियट वहाँ से चले गए। उसके 2 दिन बाद ट्रिकी की हेल्थ बिगड़ने लगी। उसने वॉमिटिंग करना स्टार्ट कर दिया, उसने खाना पीना छोड़ दिया और सिर्फ वो कारपेट पे लेटा रहता था। तो इससे वो मिसेस पम्फ्री बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो उन्होंने जेम्स हैरियट से बात करने की सोची और उन्होंने जेम्स हैरियट को कॉल लगाया और उन्होंने उनसे बात की। जेम्स हैरियट ने पहले से ही प्लान बना रखा था और उन्होंने उनको बताया कि आपको इसको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ट्रिकी का बचना बहुत मुश्किल है। तो सभी बहुत ज़्यादा दुखी थे और सबके आंखों में आंसू से, और मिसेस पम्फ्री को लग रहा था कि ट्रिकी उनके बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। उसके बाद जेम्स हैरियट उनके पास आए और ट्रिकी को एक टॉवल में लपेटा और ले गए और उसके लिए सारे सर्वेंट्स बहुत सारी चीज़ें उसके लिए रख रहे थे, लंच बाउल, डिनर बाउल, कारपेट, कुशन्स रख रहे थे। उसके बाद जब यह हॉस्पिटल गया, ट्रिकी ने स्टार्टिंग के 2 दिनों तक कुछ भी नहीं खाया। जेम्स हैरियट ने उसको सिर्फ पीने के लिए पानी दिया था। उसके बाद ट्रिकी थोड़ा सा एक्टिव हुआ और वो चीज़ों में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगा। फिर जेम्स हैरियट ने उसके लिए बहुत एक स्ट्रिक्ट डाइट तैयार की और उसी डाइट के हिसाब से उनको खाना देता और दूसरे कुत्तों के साथ उसको वॉकिंग पे ले जाना, उसको एक्सरसाइज करवाना। तो इससे ट्रिकी की हेल्थ पे थोड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आने लगी। लेकिन यहाँ मिसेस पम्फ्री को लग रहा था कि उसके साथ सर्जरी हो रही है, तो वो उसके लिए हर रोज डजन अंडे भेजती एवं वाइन, ब्रांडी भेजती ताकि वो रात को अच्छे से सो पाए। लेकिन जेम्स हैरियट ये सब ट्रिकी को नहीं देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उनको पता था कि ये चीज़ें ट्रिकी के लिए ठीक नहीं है, ये इसके बिना भी ठीक हो सकता है। तो वो जो भी चीज़ें वो मिसेस पम्फ्री भेजती थी, तो जेम्स हैरियट और उनके दोस्त उसको कंज्यूम करते थे। धीरे धीरे ट्रिकी बहुत ज़्यादा स्लिम और पतला हो गया और एक्टिव भी हो गया। बहुत सी चीज़ें से दूसरे कुत्तों के साथ लड़ता, खाने को लेकर, और उनके साथ खेलता। तो जेम्स हैरियट को लगा कि अब ट्रिकी ठीक हो गया, तो अब इसको डिस्चार्ज कर देना चाहिए। तो उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल लगाया और दूसरे दिन मिसेस पम्फ्री आई और उन्होंने जब ट्रिकी को देखा, वो बहुत ज़्यादा शॉक हुई कि वो इतनी जल्दी ये ठीक हो गया और ये अभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। और जब ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्री को देखा, वो छलांग मार के सीधे मिसेस पम्फ्री के गोद में जाकर बैठा और उनको लिक किया। और उसके बाद मिसेस पम्फ्री ने
जेम्स हैरियट को थैंक यू बोला और उन्होंने एक लाइन बोली, यह एक टाइम ऑफ सर्जरी है, ये बोलते हुए वो वहां से चली गई। थैंक यू।